Good morning, students. Today we are going to go through the chapter The Best Christmas Present in the World. Recently, I have sent you two videos about this chapter and for the introduction. But now I would like to give you an introduction of this chapter. The chapter is related about the data of the dates, about the times, how we calculate the time. Now, a letter was written by a husband to his wife. First of all, some incidents are given just at the beginning of the chapter. Now you have to find out the dates and the events. Those are really very important in view of the computation exams also. Now, there are some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914, means the First World War. Can you guess which war it was? It was the First World War. That was started in 1914 and ended on 1917. First, few dates are given here. Now, first of all, in A, 4th July 1776, you know very well a country who ruled over the world. That was Britain, United Kingdom. At present it is known as the United Kingdom. Now, the present United States of America was also suffering the slavery of the Britain, and it got freedom on 4th July 1776 as our nation became independent on 15 August 1947. So it is the Independence Day of the USA, United States of America, 4th July. Each and every year they celebrated it with very pomp and show. Now second, B, 17 December 1903. It is a milestone day in the era of flight. You know, two brothers, namely Wright brothers, invented aeroplane, and they took first flight on this day, means 17 December 1903. So it is also very memorable day. Now see, 6th August 1945. You know, it is the date of Second World War, and it is very crucial day. It was very unfortunate day for the world, because on 6th August 1945, America dropped first atom bomb on Japan. The city's name of the city was Hiroshima. 6th August 1945, you know, two atom bombs were dropped. First on 6th August 1945 on Hiroshima, and second on 9 August 1945 on Nagasaki. And you know, the both cities were destroyed completely. And now till today, no can survive there. Even the grass or the trees also can't grow there. Now D, 30th January 1948. It is also very unfortunate day, and we celebrate it as the Martyr Day, because on this day Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse in Birla House. That is today is known as the Gandhi House, situated in Delhi. E, 12th April 1961. 12th April 1961 is also a very important day in the history of the space. A European cosmonaut, we can say the astronaut or the cosmonaut, European means from Russia, Yuri Gagarin. He took his first flight around the world. So 12th April 1961 is also very important day in the space. And F, 20th July 1969. It is also a very memorable day for the space. On this day, the human being put its first step on the surface of moon. 3 astronauts were sent to find out the findings or the facts about the moon.
and Indian Rakesh Sharma also with them. And first man Neil Armstrong put his first step at the surface of the moon on this day, mean 20th July 1969. Now we start or now the chapter having 3 parts. Today we will study first part. I spotted in a junk shop in Bridport. Bridport is the name of the place. Now writer is going to tell the story how he found the letter that was written by a husband to his wife, Mr. Jackperson. A roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several places. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Yes, now the writer went to a junk shop to purchase some furniture. First of all, he found there a roll top desk. The man said it was early 19th century, and the junk shop seller told the person that to the person or the writer that it is belongs to the 19th century, means very old, and oak, and it was made from the oak tree. यानी कि राइटर के कबाड़ी की दुकान के अंदर जाता है और वहाँ पे उसको एक फर्नीचर चाहिए होता है, तो वो फर्नीचर लेने के लिए वहाँ पे जैसे ही जाता है तो उसको एक जली हुई सी ओक ट्री की एक टेबल दिखाई देती है और वो उसके बारे में इंक्वायरी करता, पूछताछ करता है जंक शॉप वाले से. एंड ओक आई हैड वांटेड वन एंड नाउ राइटर ऑल्सो वांटेड दिस वन, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो काफ़ी कीमती लग रही थी उसको. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और इसकी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी. मीन्स इट वाज रिक्वायरिंग मेंडिंग और रिपेयर. क्लमजी मेंडेड, rolled off in several pieces, expensive. This one was in bad condition, the rolled off in several pieces, and it was divided into several pieces. यानी कि काफ़ी इसके दरारें आ चुकी थी. वन लेयर क्लमजी मेंडेड, और इसका जो एक इसका हिस्सा था, एक इसका पैर जो था वो बहुत ही बुरी तरह से उसको मरम्मत किया हुआ था, यानी अच्छे से साफ सफाई से किया हुआ नहीं था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन एंड इट वाज इन बंट पोजीशन, यानी जलने के इसके ऊपर काफ़ी निशान भी बने हुए थे. All down one side, it was going for very little money. I thought I could restore it, and the writer thought that it may be repaired very well by me, कि मैं इसको अच्छे से रिपेयर कर सकता हूँ. It would be a risk, लेकिन ये बहुत ही बड़ा उसके लिए एक रिस्क भी था. A challenge, और चैलेंज भी था कि इतनी बुरी दशा के अंदर जो उसको टेबल मिल रही थी उसको रिपेयर करना था. But I had to have it, लेकिन उसको ऐसा करना ही था. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. मैं इसको लेकर के अपने गैरेज के अंदर आया घर पे इसको ठीक करने के लिए. I began work on it on the Christmas Eve, and now the writer started to work to repair the table on the eve of Christmas, means 25th December. 25 दिसंबर को ये घर पे लेके आता है और उसकी शाम को वो उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है. I removed the roll top कंप्लीटली. अब इसने क्या किया कि सबसे पहले टेबल लाया तो उसके ऊपर का जो कवर था उसको पूरी तरह से उसको हटा देता है. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जिसको इसके अंदर ड्रॉर्स थी उन ड्रॉर्स को वो भी निकालता है. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो इसकी परत थी
वेनिज के मीन्स का लेयर, जो इसके ऊपर लेयर थी वो करीब करीब सब की सब उतरी हुई सी थी, उखड़ी हुई सी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि ये शायद पानी से काफ़ी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी कि काफ़ी इसके ऊपर डैमेज हो चुका था पानी और आग की वजह से। द लास्ट ड्रॉर was stuck fast, और जो उसके अंदर जो ड्रॉर थी शायद there were 3 drawers in the table, but he moved one by one. At last third one was taking out from the table, but it was stuck fast, यानी बहुत बुरी तरीके से वो फंसी हुई थी उसके अंदर। I tried all I could to ease it out gently, उसको निकालने की काफ़ी बहुत ही अच्छे से प्रयास किया उसने, धीरे धीरे से जेंटली उसको निकालने ताकि उसके अंदर और कोई डैमेज नहीं हो। इन द and I used brute force, and at last it used a force because it was unable for him to draw out the drawer. निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने ब्रूट यानी बहुत फोर्सफुली उसने ताकत लगाकर उसको बाहर निकाला। I struck it sharply with the side to my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, और उसको ऐसे नहीं खुली तो उसने एक जोर से फिस्ट का एक मार करके फिस्ट से मुट्ठी से प्रहार किया, और प्रहार करके स्ट्रोक लगाने के बाद उसको बाहर निकाला। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो क्या पाता है उसके नीचे एक और कोई दराज बनी हुई है, कोई और एक ड्रॉर है जो काफ़ी गहराई के अंदर थी। ए सीक्रेट ड्रॉर, यानी कि नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर और उसके अंदर थी। देयर वॉज समथिंग देयर, उसके अंदर भी कुछ चीज़ थी। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स सेलोड टेप्ड। अब जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसको एक टिन बॉक्स मिलता है, और उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से उसका मुंह बंद किया हुआ, पे किया हुआ। टू द टॉप ऑफ द वाज पीस ऑफ द लाइंड नोट पेपर, और उसके ऊपर सेलो टेप से एक पेपर भी चिपका रखा, लाइन वाला जो हम यूजुअली नोटबुक के अंदर यूज करते हैं, ऐसा पेपर था जो सेलो टेप से उसके ऊपर चिपका रखा था टिन बॉक्स के बाहर। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और शायद वो सेकी हैंड राइटिंग मीन्स पुअर हैंड्स, यानी जैसे बुजुर्ग लोग वगैरह लोग लिखते हैं या कमजोर बच्चे लिखते हैं धीरे धीरे हाथों को हिलते हुए, तो वो सेकी हैंड राइटिंग हिलते हुए ऐसे, तो धीरे धीरे से वो राइटिंग उसके ऊपर चली हुई सी दिखाई दे रही थी। एंड वॉट वॉज रिटन ऑन द पेपर, जिम्स लास्ट लेटर, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और ये जनवरी 25 को 1915 को ये पत्र मिला था। टू बी बरीड विद मी, और जैसे ही ये राइटर को लेटर देखा उसने और उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो पढ़ा, तो देखते ही उसका एकदम से वो डूब सा गया अपने अंदर ही और सोचने लगा। व्हेन द टाइम कम्स आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और वो अपने आप ही उसको एक ग्लानी सी होने लगी, एक अंदर से एक हेड सी होने लगी कि वाई आई ओपन द प्राइवेट लेटर, कि मैंने किसी और का पत्र क्यों खोल दिया, ओपन द बॉक्स। बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजली डज, लेकिन वो अपने स्क्रपल्स यानी कि जो मोरल होते हैं, मोरलिटी होती है, उसको त्याग करके, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि शायद इसके अंदर और क्या है, तो उसने उसको बॉक्स को खोलने की कोशिश की, जबकि ये इमोरल था, खोलना उसके लिए नैतिक रूप से अच्छा नहीं था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप, और उसके अंदर उसने देखा कि एक इन्वेलप भी था। द एड्रेस रेड, और उस इन्वेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था, दैट वाज मिसेज जिम मैकफरसन, और उसके ऊपर लिखा था कि ये लेटर किसको डिलीवर करना, मिसेज जिम मैकफरसन को। 12th कॉपर बीचेज, और ये भी एड्रेस है घर का। ब्रिडफोर्ट नेम ऑफ द प्लेस और द सिटी। डोरसेट नेम ऑफ द स्टेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और खोल करके उसको देखा, यानी राइटर ने। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी लेटर लिखने की, December 26, 1914। अब आप देखिए, सोचिए, 2 डेट इसके अंदर दी गई है। एक हमने ऊपर पढ़ी थी जो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है, जनवरी 25, 1915, यानी ये वो तारीख है जिस दिन ये लेटर उसको मिला था। और नीचे जो आपको तारीख दी गई है 26, 1914, ये वो तारीख है जिस दिन राइटर ने यानी कि मिस्टर जे मैकफरसन ने ये लेटर लिखा था। तो आप सोचिए, December 26, यानी कि यू कैन सी ऑन 25 December एवरी ईयर वी सेलिब्रेट क्रिसमस,
and after one day of the Christmas celebration he wrote the letter 1914, यानी 26 दिसंबर 1914 को उसने लेटर लिखा, और लेटर उसको अब जाकर के मिलता कब है उसकी वाइफ को यानी मिसेज मैकफरसन को जनवरी 25 1915, जनवरी 25 को मिलता है, यानी कि करीब करीब उसको 5 और 30 आफ्टर 30 डेज ही गोट द लेटर, शी गोट द लेटर, यानी कि उसको 30 दिनों के बाद में जाकर के वो लेटर मिलता है। क्योंकि एट द टाइम देयर वर नो कम्युनिकेशन वेल, उस जमाने के अंदर डाक वगैरह की व्यवस्था अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो इस हिसाब से उसको लेटर बहुत ही टाइमली नहीं मिलता था। और वैसे भी उस टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम था, बहुत ही रिस्की समय चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये डाक वगैरह जो पोस्टल सर्विसेज थी वो बहुत ही मुश्किल से इधर उधर हो पाती थी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला आपके दिया गया है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, जंक शॉप के अंदर ऑथर जो है राइटर है उसको क्या मिला। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो इसके अंदर आप आराम से इसका क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं कि जंक शॉप के अंदर गया तो उसको क्या मिला। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी फाइंड इन ए शॉप इन ब्रिडफोर्ट, ये शुरू के अंदर लिखा ए रोल टॉप डेस्क, क्या मिला उसको, यानी आई स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स फाइंड आउट, मैंने पता लगाया, इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडफोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। तो आपका केवल आंसर इतना ही आपको लिखना है कि व्हाट डिड सी फाइंड इन द जंक शॉप, सी ही फाउंड ए रोल टॉप डेस्क, केवल आपको इतना लिख देना ए रोल टॉप डेस्क, बस। सेंटेंस अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको कंपोज नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इतना इसका आंसर लिख दीजिए ए रोल टॉप डेस्क, ये उसको दुकान के अंदर मिला था। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, अब ये कह रहा है जो सीक्रेट ड्रॉर थी उसमें उसको क्या मिला। और वैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो सीक्रेट डोर थी, जो थर्ड डोर थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लास्ट वन थी, उसके अंदर जब हमने इसको खोला था तो उसके अंदर एक टिन बॉक्स निकला था, आपने अभी पढ़ा था। ऊपर देखिए पैराग्राफ के अंदर ये यहीं पे लिखा है जेंटली ड्रॉ जेंटली open a reveal shallow space underneath a secret was something there I reached in took a small yes here a small black tin box, ये उसको मिला था, यानी कि इस छोटा सा एक टिन का एक उसको डिब्बा मिला था उसके अंदर, ये इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। वो डिड दे फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर ए ब्लैक टिन बॉक्स, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, ये वहाँ पे किसने रखा होगा। राइटर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये शायद वहाँ पे किसने रखा होगा। तो हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है जिसके अंदर हमें यह पता चल रहा है कि मिस्टर जैकफरसन लेटर लिख रहा है अपनी वाइफ को, मिसेस मैकफरसन को, और जब ये लेटर आपको पता कब से कब लिखा गया था, दिसंबर 26 1914 को लिखा, और 25 जनवरी 1915 को उसकी वाइफ को मिला था, जो उसने लिखी, खुद ने डेट लिखी थी उसकी मिसेज वाइफ ने उसके ऊपर। तो इस डिस्क्रिप्शन को जब हम पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट को, तो हमें पता चलता है कि लेटर लिखने वाला मिस्टर मैकफरसन था और लेटर पाने वाला जो था वो उसकी पत्नी थी। तो शायद उसकी पत्नी ने, क्योंकि उसमें पत्नी ने खुद ने एक स्लिप लगाई है और उसके ऊपर लिखा है कि इट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ माय हस्बैंड मिस्टर मैकफरसन, तो शायद उसी ने ये लेटर लिखा होगा। सो द लेटर वाज प्लेस्ड इन द ड्रॉर बाय द वाइफ ऑफ मिस्टर मैकफरसन। तो आज हम इतना ही करेंगे और कल शायद हम सेकंड पार्ट वापस करेंगे।